Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Yashmit, you send me that worksheet. Yes, good morning. So we are going to do the revision because there are so many less number of children from this class. Just give me 1 minute. Uh, Chalo. Now there are questions which we are going to discuss here. Yashmit कर दिए बेटा send. Yashmit. आ गया ये. Worksheet 2 ratio na Yashmit. I got it. Wait for 2 minutes. Linear equations का revision. Okay, I'll give you questions for linear equations. Anybody is having any doubt with the worksheets I sent? Open your cameras. Anybody is having any doubt the worksheets which I sent to you? We'll discuss that. Agra is here. He was having some doubt. Anybody face any doubt in any question? We'll clear the doubts in this period because this is an arrangement period. So half of the class is there, half of the class is not there. So it's better let's clear our doubts. If you have any doubt in any question, in any part, anything, you just let me know. Okay, now if you don't have any doubt, if you have, just raise your hand. Okay, if you don't have, then let's do the revision. See, I gave you one question related to ratio and proportion one. Okay, let me share the PDF here. Wait a minute. Send file. Just wait. I'm just sharing one picture over here. Whoa, the document over here. That the data of ratio which I shared on the during this worksheets when I sent to you. Just give me 1 minute. I'm just opening it. Just getting set. अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज डू लेट मी नो दिस क्वेश्चन इज आई एम हैविंग डाउट you share the question, you share the question number. No, not the question number, just share the question, we'll discuss here. Okay, or any method if you are facing any doubt. That is simple. अच्छा क्यों नहीं रहा है? Ma'am, I have a doubt. Yashmit. Where beta Yashmit, where is it? Ma'am, question 4, E part. Beta, right, tell me the question. Okay, what is the question for 2, E part? 2, 2 bracket, bracket x plus 6, x plus 6 bracket close, हाँ plus 3, plus 3 bracket 4x. bracket is bigger bracket, this one. No, ma'am, normal अच्छा न्यू like ब्रैकेट. in अच्छा, starting a new bracket.
bracket 4x plus 8 plus 8 equals to okay bracket close equals to 2x. is equals to 2x. Okay, see everyone, this kind of question, if it is there, how will you do it? See, you have to use the method of multiply. Now 2 और x plus 6 के बीच में क्या लगा है? Which sign is there between 2 and x plus Multiply. 6? If there is no sign, there is a hidden multiplication sign. And if you remember the distributive property, तो distributive में क्या होता है? अगर हम multiply करते हैं किसी भी brackets को, तो इससे भी multiply होना पड़ेगा और इससे भी multiply होना पड़ेगा. बेटा अगर आप x और 6 add कर सकते तो हम इसे according to BODMAS हम इसे add कर लेते, लेकिन ये दोनों ऐड नहीं हो सकते. सो व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी विल यूज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एक बार 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into x is what? 2x. फिर प्लस साइन इज है तो प्लस साइन लगाओगे. 2 6 का कितना होता है? 12. राइट. फिर ऐसे ही अब क्या करेंगे? प्लस का साइन विल बी प्लस. 3 को आप इधर 4x से मल्टीप्लाई करो. 3 ऐसे ही करो. 3 को इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई. 3 4 का कितना होता है? 12. X. और एक x लगा देंगे इसमें. और 3 8 का कितना होता है? 24 इज इक्वल्स टू 2x. अब एक काम करो, सारे x वाली टर्म्स एक तरफ ले लो, LHS में ले लो, और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो RHS में ले लो. तो 2x इधर है, 2x को इधर ही रहने देते हैं, 12x इधर रहने देते हैं. ठीक है, और ये वाला 2x इधर ले आते हैं, ये वाला 2x इधर ले आते हैं. तो प्लस का 2x है तो माइनस का 2x हो जाएगा. एंड विल सेंड द कांस्टेंट टर्म दैट साइड. कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे +12 है, तो ये इधर आके -12 हो जाएगी. यहाँ कुछ बचा तो है नहीं राइट हैंड साइड में, 2x था उधर भेज दिया. ठीक है, अब ये क्या है? प्लस का 24, तो इट विल बी -24 हियर. अब 2x माइनस 2x तो 0 हो गया. 2x प्लस का 2x माइनस का इट विल बी 0. तो यहाँ क्या बचेगा? केवल 12x इज इक्वल्स टू -12 -24 विल बी -36. ठीक है, x विल रिमेन एट इट्स प्लेस, -36 अपनी जगह रहेगा, ये 12 इधर आ जाएगा डिवाइड. व्हाई? बिकॉज इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में 12 1 जा 12 3 जा, तो आंसर विल बी x की वैल्यू विल बी -3. ओके, understood? Yes, ma'am. Anybody is having any other problem? Yes, ma'am. Yes, tell me which one. Ma'am, I have a doubt from R.S. Agarwal. Okay, share it beta. Algebra. But share the question, okay? That's it. On a personal number, ma'am. No, like here itself. Acha, okay, ma'am. Ma'am, the question is that. Okay, wait a minute. Just let me write Okay, it down. What is the question? Ma'am, I just wanted you to explain me that question better. That its question is that Mrs. Goyal is 27 years older than her daughter Rekha. Okay, I'm writing After the 8 question, years. okay? Just give me 1 Okay. minute. I'm writing and you just let me know what is the question. Okay. Okay. Question number, okay, let it be whatever the question number is. Mr. Ma'am, Mrs. Goyal Mrs. Goyal, is 27 years older 27 years older than her daughter Rekha. than her daughter Rekha. Okay. After 8 years, Wait a minute. After 8 years, yes, she will be twice as old as Rekha. she will be twice as old as Rekha. Okay. Find their present ages. Okay. Find present ages. Okay. Okay, see here. Rekha is 27 years older than her daughter. Do you know, beta, I always told you, always mention the present date. Present age देखा करो. पहले present age मान के चला करो. फिर जैसे कि मूवीज में होता है ना, 7 साल बाद ऐसा हुआ, 8 साल पहले ऐसा हुआ, लाइक दैट. जैसे मूवीज में होता है, लाइक एक दिन पीछे पहुंच जाते हैं ना, हम पीछे ही पहुंच जाएंगे बिल्कुल. ठीक है, फिर हमें आगे कुछ नहीं याद होता है. ठीक, so let us talk about the present ages. Let the present, okay, what is the present age of Mrs. Goyal? Do you know the present age of Mrs. Goyal? Let the present age of No, Mrs. ma'am. नहीं, Goyal be X.
plus 27. No, we don't know. Okay. But do you know her daughter's age, present age? You know that she is No, ma'am. 27 years older than her daughter. बेटा नहीं समझ में आता है तो जैसा लिखा है वैसा लिख लो. 27 years बड़ी है अपनी daughter से. That means 27 years let the daughter age. It means like this. Yes, मैंने क्या ma'am. बोला था? मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है मैथ्स में, इतना लंबा स्टेटमेंट है, तो आप उसे आधा मैथ्स में और आधा हिंदी आधा इंग्लिश में लिख लो. ठीक है. 27 years older का मतलब हुआ प्लस देन डॉटर एज. सो लेट द डॉटर एज बी x. लेट द डॉटर्स एज बी x. अब डॉटर की एज x मानो. ठीक. तभी तो हम लिख सकते हैं इसको. तो मिसेस गोयल की कितनी हो जाएगी? 27 अपनी जगह 27 रहेगा plus X. एंड प्लस x. ठीक. अब आ जाओ मूवीज की तरह. अब बात आ कर रही है 8 साल बाद की. ठीक है. तो लेट्स टेक आफ्टर 8 years. 8 साल के बाद अब मुझे ये बताओ डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? x plus 8. 8x मत करना बस. ठीक है. व्हाट मोस्ट ऑफ यू डू, आप 8x लिख देते हो जल्दी में. नहीं. अगर आप अभी 12 इयर्स के हो तो 8 साल के बाद आप 20 इयर्स के होगे. 12 8 96 इयर्स के नहीं हो जाओगे 8 साल के बाद. इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना होता है. 8x नहीं करोगे. ठीक है. तो 8x plus 8 विल बी देयर. अब हम 8 साल तो बाद आ फिर गए. मैम किसी भी ठीक है. क्वेश्चन अभी हम में पहले एक अब पहले मेरे दोनों की एजेस निकालेंगे. अब कितनी हो गई? आप क्वेश्चन में बाद में पुट करेंगे. ठीक है. पहले डॉटर की एज हो गई है x+8 और मदर की कितनी हो जाएगी? मींस मिसेस गोयल की कितनी हो जाएगी? 27 plus 27 plus x plus 8 प्लस हाँ एक्स. ये equals पहले to थी. ये पहले थी 8 साल पहले. अब कितनी होगी? जितनी पहले थी प्लस 8. 35 plus x. तो ये 27 और 8 ऐड हो जाएगा और ये x ऐसे का ऐसे ही है. ठीक है. ये मिसेस. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ कम टू क्वेश्चन. अभी पहले हमने खुद से कैलकुलेट की है. बेटा एजेस वाले में खुद से भी का दिमाग लगाना पड़ता है अपना. ठीक है. ये अभी हमने खुद से किया. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इंग्लिश में ही लिखूंगी बेटा. मैं कोई ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाऊंगी. जो क्वेश्चन में लिखा है मैं वही लिखूंगी. मुझे नहीं आता कुछ ज्यादा. ठीक है. तो क्या करें? शी विल बी. शी किसकी बात हो रही है? मिसेस गोयल की. तो शी की जगह मैं लिख दूंगी मिसेस गोयल. 8 साल बाद की बात चल रही है सारी अभी कहानी. ठीक है. शी का मतलब है मिसेस गोयल. विल बी का मतलब हुआ इज इक्वल टू. विल बी या इज या वॉज आता है तो इक्वल टू का साइन. ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा. दैट मीन्स ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय रेखा. दिस इज व्हाट शी मीन. मिसेस गोयल की एज अभी yes कितनी ma'am मैंने निकाली थी? 35 प्लस एक्स. तो मिसेस 35 गोयल के plus नीचे विल राइट 2 35 प्लस एक्स. 2 के नीचे विल राइट 2. मल्टीप्लाई के नीचे आई राइट मल्टीप्लाई. एंड रेखा की एज इज x प्लस 8 आफ्टर 8 years. तो 8 ये दिस इज द इक्वेशन फॉर्म. ठीक है. okay नाउ ma'am हाउ टू सॉल्व द नाउ वी व्हाट इज रिक्वायर नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर कि अभी हमें क्या निकालना रह गया है? दिस एक वैल्यू ऑफ x. तो कैसे निकालेंगे? 35 प्लस x विल रिमेन हियर. अब आपको 2 से फिर वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 2 एक बार x से मल्टीप्लाई करोगे, 2 एक बार 8 से मल्टीप्लाई करोगे. तो 2x प्लस 16 विल बी देयर. वेट अ मिनट. 2x प्लस 16 विल बी देयर. ठीक है. अब आप एक काम करो. x सारे एक तरफ ले लो और वो सारे नंबर्स एक तरफ ले लो. x अपनी जगह रखा रहने दो. 2x इधर ले आओ. माइनस का 2x हो जाएगा. 16 अपनी जगह रहेगा. प्लस का 16 है तो प्लस का 16 विल रिमेन एट इट्स प्लेस. 35 विल गो दैट साइड. तो माइनस 35 हो जाएगा. x माइनस 2x. x के पास साथ कुछ नहीं लगा है. दैट मीन्स इसके साथ क्या है? 1. 1 माइनस 2x विल बी माइनस का x. एंड माइनस 6 माइनस 35 दोनों वो सही. दिस इज प्लस ना. सॉरी दिस इज प्लस. 16 माइनस 35 बताओ कितना आएगा आंसर? 19 minus 19. माइनस का 19 क्योंकि 35 बड़ा है तो माइनस का 19 हो गया. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19. ठीक है. अब ये x की वैल्यू आई है. दैट मीन्स ये किसकी एज आई है? डॉटर की एज इज 19. एंड इफ यू कैलकुलेट दी रेखा वो दिस इज मिसेस गोयल एज 27 प्लस 19. तो अंडरस्टूड फिर मैम जसरीना? this x yes ma'am x is equals to 19 तो मैम 19 is the age of Rekha हाँ रेखा की एज है ना. मिसेस रेखा की एज होगी 19 इयर्स. और मिसेस गोयल की and कितनी होगी? Rekha's age is equals to मिसेस गोयल into की 2 कितनी होगी? 27 प्लस 19 इयर्स. okay ma'am ठीक है.
हाँ जी। Any Thank you, other ma'am. problem? Anywhere doubt in this question? Jastrina, now you have. बेटा Ma'am, I ages वाले just में. wanted to ask हाँ हाँ. that कि इसमें मैम it is written that she will be twice as old as Rekha. हाँ तो मैम उसकी age won't be multiplied by 2. हाँ, तो करा तो देखो, ये देखो, ये 2x 2 मल्टीप्लाई बाय रेखा लिखा है ना. व्हाट आई हैव डन, Hmm. जो इन्होंने बोला वही Yes, मैंने ma'am. इंग्लिश, इन्होंने इंग्लिश में बोला वही मैंने आधा इंग्लिश आधा मैथ्स में लिख दिया. Yes, ma'am. तो फिर मैम 19 multiplied by 2 is equals to Rekha's age. Oh, ना ना Goyal's ना age, ना बेटा, which ये is same. 8 साल बाद की कहानी चल रही है ये सारी. ध्यान रखो, ये सारी कहानी यहाँ से जो स्टार्ट हुई है 8 years आफ्टर की है. ठीक है. Yes, जस्ट ma'am. दिस इज ऑल द स्टोरी ऑफ 8 years लेटर. वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एजेस, नॉट 8 years लेटर एजेस. हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी थी. तो प्रेजेंट की कहानी कहाँ थी? ये रिप्रेजेंट की कहानी. दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट. Yes, ma'am. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पर नहीं पुट करेंगे वैल्यू. Okay, ma'am. Ma'am, Excuse so me, ma'am. present age will be 27 plus 19. यस 27 + 19. यस. मैम लेकिन वो कहानी तो यहाँ पे 8 इयर्स बाद की है, तो हम 8 माइनस नहीं करेंगे? क्यों करेंगे हम? क्यों हम हमें तो प्रेजेंट पूछा है ना, तो हम प्रेजेंट वाले के पास जाएंगे सॉल्व करने के लिए. हम क्यों जाएंगे 8 years के Ma'am, पास? but it is 8 years after, so we have to count for 8 years अरे before. भैया, ये दिखा तो है प्रेजेंट एजेस. आप लोग क्यों 8 years लेटर जा रहे हो? वो तो सिर्फ एक इक्वेशन बनाने के लिए दी हुई थी. दैट्स फॉर द जस्ट फॉर द इक्वेशन. यू हैव टू पुट 27 + x, इसमें पुट करोगे. प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है. तो प्रेजेंट एज मिसेस गोयल की इज 27 + x. व्हाई आर यू मेकिंग इट सो कॉम्प्लिकेटेड? वो सिर्फ No, ma'am, इक्वेशन I बनाने totally के लिए इतनी understand it. स्टोरी दे रखी है बेटा, ताकि आपकी इक्वेशन बन जाए. Ma'am, हम्म. I have doubt. Ma'am, I have doubt in the worksheet of the ratio which you have sent in the first question, seventh one. I will just start it. Wait a minute. Okay. Done everyone? Anything else? Anybody? Chalo. Let me start with the next question. Which one is it? Okay, I'm sharing the worksheet of the this one. कहाँ गया? Documents कैसे open होगा इसमें? Wait a minute, I'm just opening it. ये open नहीं हो रहा है बस. Document. It's taking a lot of time. Not even downloading. Just give me 1 minute, class. हाँ, आ गया. Okay. Where is this document? DOC. ABCD. Oh, तो नहीं अपना सकता. Join folder. Yes. Ma'am, I also have a doubt in one question. Can I What ask? happened? I can't hear Ma'am, you. I also have a doubt in one question. Can I ask? Okay. Ma'am, the question is CP minus 2 upon P. Wait. अभी देखेंगे, अभी बताती हूँ बेटा. Wait for 1 minute. ओपन नहीं हो ऐसे.
इट्स नॉट ओपनिंग, वेट अ मिनट, अभी मैं करवा दूंगी। हाँ आप बोलो, कौन बोल रहा था कि आई हैव अ डाउट? प्लीज Ma'am, शेयर इट। 1 3p minus 2 upon 3. बेटा आवाज नहीं आ रही है मोक्षित बिल्कुल भी, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। रेशो वाला, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीनशॉट देन। कि वो तो सेंड ही नहीं हो पा रहा है। शेयर इट इन द ग्रुप। आई पिक्चर शेयर कर दो बेटा मोक्षित, कुछ मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। Okay, ma'am. ठीक है, चलो, आई गॉट दिस थिंग, पिक्चर इज बेटर देन दिस। Picture is ratio. Yes, this is the one. Okay, see, who's saying some problem in this question? Who is asking there is some problem in these type of questions like ratio one? Yes, which Ma'am, I question? was asking, ma'am, seventh one of the first question. Ma'am, Seventh one that means part, बेटा G, part का G, नेम G, होता है A B C D E F G H, इसीलिए होता है ना, जिससे आप उसका नए नंबर बोल दो, है ना? G one. See everyone now. Okay, G part, a factory produces CFLs. One out of every 1070 CFLs is defective. Means out of 1072 अगर वो बना रहा है तो उसमें से एक डिफेक्टिव निकल रही है। दिस इज द रेशो। ठीक, दैट आउट ऑफ 172 वन इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव और टोटल का ये रेशो है, डिफेक्टिव इज टू टोटल का ये रेशो है। एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इतनी CFLs पर डे, देन द नंबर ऑफ defective CFLs produced each day is. So you don't know how many defectives are there in one day. Let the defective in one day be X. ठीक है, दैट मीन्स वन में से अगर 1072 आपकी डिफेक्टिव निकल रही हैं एंड यू डोंट नो हाउ मेनी आर इन वन डे, दिस इज फॉर, अगर बना रहे 1072 में से वन निकलेगी, बट वन डे में वो इतनी बना रहा है, सो इट विल बी 274,432. So to calculate the value of x, what we will do, 1 multiply by 274,432 divided by 1072. Divide it and find out the answer. Everyone, just do it. Everyone has to do it and tell me the answer in the chat box. Ma'am, I I'll have just, sent it in group. what beta? Acha, the Ma'am, I question have is, sent it in group. okay, okay, I'm just checking. By the time you just solve it. Okay. Okay, I'll discuss it abhi. ठीक है, Mokshit, let it be. Okay. Okay, Yashmit. Okay, ma'am. I got one answer. Yashmit क्या कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है? हाँ मैंने कर रखा था। अच्छा, टू पी थ्री पी टू, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट वन बेटा। मोक्ष जो आप पूछ रहे हो ना थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट है, बट लेट्स डू इट, बता दे रही Yes, हूँ मैं। ma'am. ठीक है, it's quite मैम difficult. This is not going to come in exam, but I'll tell you. Actually, it दिस is a जी seventh वन class question. Huh? Ma'am, the answer is दिस coming in जी points. No, it's not मैम coming in दिस points. द क्वेश्चन दैट अथर्वगुप्ता आस्क्ड हम्म, इज ऑफ यूनिटरी मेथड। कौन सा ये जी वाला? नहीं, इट्स अ रेशो। वन में बेटा 1072 में से वन जो है डिफेक्टिव है इन एंड आउट ऑफ, तो ये आपसे ये पूछा है टू, हाँ इन वन वे यू कैन से या इट्स ऑफ यूनिटरी मेथड। प्रपोर्शन भी कह सकते हो बिकॉज इट्स इन प्रपोर्शन ओनली। ठीक है, so that's why it's in unitary method, we can say that, yes.
प्रपोर्शन में है ये. Could you tell me final answer of the previous question? Which final answer of the previous question? Ma'am, Rekha and Mrs. Goel. Jastrina, what was the answer? Jastrina will tell you. चली गई क्या? Yes, she is correct. कहाँ गई है जसरीना? भाग गई है. Yes, yes, मैम wait, tell मेरे the को answer. पता Tell the answer, yes, ma'am. age of Mrs. Goel is 46 years and age of Rekha is 19 years. Okay, thank you. Yes, correct. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I have a doubt in the B part. What? Ma'am, it is 256. The division answer coming. Which one? Ma'am, this G1 answer is coming after division 256. हाँ Yes, तो ma'am, क्या होता? 256. तो बेटा मैंने चैट बॉक्स में लिखने को बोला था, इधर उधर घुमाने को नहीं बोला था. ओके. Sheesh and this, they have already answered it correctly. 256 is the correct option. Okay, now next question. Okay, I'm starting from the beginning. Okay, I'm starting from the beginning. There are B boys and G girls in a class, and the ratio of the number of boys to the total number of students in the class is. See, there are B boys. That means B तो ऊपर आएगा. किसका पूछा? Number of boys तो ऊपर आ गए. ठीक. टोटल नंबर, टोटल कितना होगा? डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल कितना होगा? बॉयज और गर्ल्स ऐड करके तो टोटल होता है. तो B अपॉन B प्लस G. दैट इज द फर्स्ट. ठीक है. A textbook of class has 320 pages. The 10th chapter of the books runs from, जो 10 चैप्टर है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है. ठीक है. The ratio of number of pages to this chapter. अब 261 से 272 तक काउंट करो कितने पेजेस हो गए. 12. 261, Ma'am, 11. 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272. 12 pages are there. है? नहीं, 11. नहीं. But we will also count 261 हाँ, because the 12, chapter 12. is Yes, starting. 12 pages are there. And total book has 320 pages. So 12 upon 320. अभी आंसर नहीं हुआ. अभी मैं 11 upon 320 कर देती तो ठीक हो जाता. But this is wrong. तो क्वेश्चन 12 upon 320, but none of them is given here. तो एक काम करते हैं, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 4 से डिवाइड कर देते हैं. 4 3 is the 12, 4 8 is the 32, 0. Is 3 upon 80 here? Yeah. This is the answer. ठीक है. The first, third and the fourth terms of the proportion are this respectively. The second term of the proportion is. तो पहले वाले का तो आया था हमारा. वेट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. Okay, first one is this one. Second one is this one, not this one. This one is wrong. If you will, the first, third and the fourth proportion. First वाला क्या है हमारा? 27. Second वाला क्या है? नहीं पता है, तो write the value of x here is proportional to. ओहो, मीटिंग वाला क्यों आता है मैसेज? ठीक है. Then the third one is 63. So let's write third one is 63 and the fourth one is at 84. तो क्या हुआ? 27 upon x is equals to 63 upon 84, right? तो x को उधर ले जाओ. 27, or you can do the mean and this one, तो ज्यादा better है. तो what we have done, वो याद है क्या था? Product of mean to product of extreme. 27 multiplied by 4, 84 is equals to x multiplied by 63. So what will you do here? 27 multiplied by 84 divided by 63 is equals to x. ठीक है.
63. 9 ones are 9, 7s are 63, 9 3s are 27, 7 ones are 7, 7 2s are 12, 3s are 36 is the answer. 36 is the correct option. ठीक है, 36 is the correct option here. किसी को अगर डाउट है तो पहले हम वाला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 10 kg of caustic soda dissolved in 100 ml of water makes a solution of the caustic soda. Soda required for 1 liter of water to make a solution. अब see, this is something good question. अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा हमारा। आप इसे यूनिटरी मेथड में भी ले सकते हो और आप इसे प्रोपोर्शन में भी ले सकते हो। अभी हमने यूनिटरी मेथड पढ़ा था, like 10 gram caustic soda is dissolved in 100 ml. You can do is in ratio also. 10 ग्राम है और 100 ml. अच्छा ओके ओके हाँ, ये सेम उसमें नहीं आ सकता। वेट, हमें नहीं पता है कि कॉस्टिक सोडा का अमाउंट वी हैव टू फाइंड आउट। 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा में कितना आ रहा है? 100 ml ऑफ वाटर। नहीं तो ग्राम पता करना है ना। ठीक, वेट 100 ml में कितने ग्राम में आ रहा है हमारा? 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा आ रहा है। तो 1 ml में कितना आएगा? 10/100 ग्राम, राइट। और अभी हमें कितना पूछा है? 10 ml। 1 ml में 1 लीटर में पूछा है, तो 1 लीटर हैज 1000 ml। तो 1000 ml में कितना होगा? 10/100 इंटू 1000 ग्राम। तो 1 2 0 से 2 zeros कट जाएगा, आंसर विल बी 100 ग्राम। 100 ग्राम इज द आंसर। गॉट इट? यू कैन यूज द यूनिटरी मेथड एज वेल एज यू कैन यूज द रेशियो ऑल्सो। रेशियो ऐसे होगा 10 ग्राम इज टू 100 ml। जब आप 10 ग्राम ले रहे हो तो वो 100 ml आ रहा है। नहीं, फिर वो यूनिट खराब हो रहा है। वेट, 10 ग्राम में आपको नहीं पता है कि कितना कॉस्टिक सोडा यूज हो रहा है। 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा इज टू x ग्राम कॉस्टिक सोडा। तो आप जब आप 10 ग्राम ले रहे हो तो आपका 100 ml आ रहा है और ये आपका 1000 लीटर आ रहा है। 1000 लीटर 1000 ml वो 1 लीटर आ रहा है, which is equals to 1000 ml. Like this also you can do. So final answer will be 100 gram. That's it. Got it? Any doubt? No, ma'am. One second. Now see the next. The ratio of the two positive integers is this, and the sum is this. Then the integers are the x. This is a very good question. It's quite difficult one. The ratio of the two positive integers is this. दो positive integers का ratio कितना है? इतना है। उनका sum is 180. Then their ratio is then the integers are, yes. आप उल्टा भी कर सकते हो एक तरह से। If you know that the ratio is 3:17, ठीक है, तो अब आप देखो 3:17 इनमें से किसका रेशियो बन रहा है? उल्टा करके भी देख सकते हो आप। इनमें से 3:17 किसका आ रहा है? जो 3 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा नंबर ढूंढो जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 3 से 27 कौन and सा हो रहा है? 153. 27 हो रहा है। 17 तो प्राइम नंबर है, ये 3 की टेबल में आएगा ही नहीं। 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, ये भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। 41 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, ये भी 3 की टेबल में कौन आ रहा है? केवल 27 और 153। तो अगर आप इसको 27 और 153 को आप रेशो निकालो इसका, 7 3 21, 7 2 14 एंड 1 3 सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। 9 3 21, 51. सॉरी 9 3 21, 9 1 9, 9 1 9, 63, 9 7 63। सी 17, 3:17 आ गया। ये 3:17 आ हम गया। वो मैम जो 3x और 17x करके वो भी कर सकते हो ना? हाँ, वो भी कर सकते हो। यस, दैट आल्सो यू कैन डू। अभी तो बेटा ये एमसीक्यू था। एमसीक्यू में आप उल्टा काम करो तो ज्यादा बेटर है। आप ये देखो, अगर ऊपर 3 आ रहा है तो इसका मतलब है जो पहला वाला नंबर है वो 3 की टेबल में आना चाहिए। ये नहीं आ रहा है तो ये कैंसिल, ये नहीं आ रहा है तो ये कैंसिल, ये नहीं आ रहा है तो ये कैंसिल। इन दोनों का सम देखो 180 आ रहा है। ठीक है, यस। ये तो एमसीक्यू था इसलिए हमने डायरेक्टली कर लिया। अगर ये इन केस एमसीक्यू नहीं होता तो आप इसे कैसे करते? आप इसे ऐसे करते, 3x और दूसरा नंबर क्या होता? उनका रेशियो क्या था? कौन कौन से? ओ सॉरी, 3:5 रेशियो। नहीं नहीं, कहाँ गया वो क्वेश्चन? 3:17। यस, 3x और 17x इन दोनों का रेशियो। एक नंबर 3x हो गया, फर्स्ट नंबर इज 3x एंड द सेकंड नंबर इज 17x। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180। तो क्या करते? 20x, 20x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाती है 90, सॉरी 9। x की वैल्यू विल बी 9।
और जब x की वैल्यू 9 आएगी तो यू विल पुट इन 3x, 3 9 27 एंड 17 3 दैट। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एमसीक्यू था इसलिए डायरेक्टली करना ज्यादा बेटर था, वरना आपको मैंने बताया हुआ है जब भी रेशियो में दिया होता है तो आप क्या करोगे 3x और 17x। फर्स्ट नंबर इज 3x एंड सेकंड नंबर इज 17x, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन लॉट इन क्लास, लाइक द सम ऑफ द रेशियो 3x + 5x कर लो इज इक्वल्स टू 50। आई डोंट थिंक सो ये मुझे बताना पड़ेगा। 8x इज इक्वल्स मैम टू लास्ट 250। H1 इज डिफिकल्ट, H1। ओके H1 डिफिकल्ट है तो H1 कर लेते हैं, ठीक है। 3 minutes are left. See H1, if an electric pole casts a shadow of length 30 meter, एक इलेक्ट्रिक पोल है, ओके, इट्स एन इलेक्ट्रिक पोल, ये कितने का है 30 मीटर का। जब अच्छा देखो ऐसे नहीं करते, लेट्स नॉट मेक इट, लेट्स से पोल एंड शेडो, पोल इज टू शेडो का रेशो, ऐसे करते हैं, ठीक। पोल कितने का है हमारा 30 मीटर का, जब वो 30 मीटर का पोल है तो उसकी शेडो कितनी की है 12 की है, 12 मीटर की है। देन शेडो ऑफ का वेट पोल मैम कंस्ट्रक्टेड वो हो गया एट द टाइम शैडो 12 30 मीटर था। मीटर की है, पोल की लेंथ नहीं पता है। वो हाँ उल्टा शा- करा आपने, यस 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 यस, आई डिड इट रॉन्ग। बेटा प्रपोर्शन में होंगे ये, ठीक है। एफ एन इलेक्ट्रिक पोल, पोल की हमें लेंथ नहीं पता है तो पोल की लेंथ हम एक्स मान लेते हैं उसकी, लेकिन पोल की शेडो पता है 30 मीटर की है। व्हेन अ 12 मीटर हाइट ट्री, ट्री की हाइट कितनी है 12 मीटर और शैडो कितनी है ट्री की 16 मीटर, देन इट विल बी यस इट्स सिंपल, एक्स को आप इधर ही लिखा रहने दो, 12 into 30 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 15 जा 15 3 जा 45/2, it's 22.5 coming, 22.5 meters, okay। Let me share the next link, wait for 1 minute class. Zoom class, this is fourth period right, fifth period, Yes. fifth period 6C, नहीं कौन सा है इसका थर्ड बी। Any other problem if you have class in any of the questions? Yashmit, have you done these questions? Please send me the PDF of it. यस Answer sheet of the answer sheet on my personal number. मैम, Okay. दोनों का इसमें बताओ बेटा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अलजेब्रा वाले का भी मैम। हाँ बेटा सारा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? This is college. Okay, now class. क्या बचा है अब? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? Anybody is facing any problem in this question? वैसे भी पीरियड ओवर हो गया है, we'll do it tomorrow now. Class third week. Third week.